Hello student, welcome at my channel. Now this is the remaining part of sets, and in first video I was discussed about the sets, that is what is sets and how we are representing a set. Now in this video we are doing that is some mathematical sets. These are just well known sets are that is these same symbol you will write, otherwise there is no foundation. You are representing by A, B, C or D, but these sets are called mathematical sets because these are fixed. Generally in all the books they are same. So first of all is natural number, that is n, represented by 1, 2, 3. 3 dots are showing that is this is going up to infinite. So there is nothing more you have to write. After that, when you will include 0, it becomes a whole number. When all the positive numbers including this whole number and all the negative numbers we are writing together, then it will be a set of integers. Generally they are represented by z or I, and here write something just like I plus or I minus. So I minus and I plus are showing their positive integers and negative integer, and 0, you know that 0 is not a negative and positive number, this is not having any symbol. So positive integers, that is from 1, 2, 3 up to infinite, negative integer, that is minus 1 and minus 2 up to infinite, and 0 is the another number. So this whole is called integers. After the rational number are that number which are we can write in the form of P upon Q. You know that in integers these are in whole number, there is no fraction is allowed in this set. That's why next set will be taken, that is called rational number. Rational number is also having fixed letter in all mathematics books, and this is represented by x equal to P upon Q, and where Q is not equal to 0 because denominator cannot be 0 when P and Q belongs in integers, and P, Q are co-prime in the sense what, that is divisor of P and Q should be 1. In that case this will be a proper rational number. After that number which we cannot write in the form of P upon Q, they are called irrational number. Irrational number generally it is represented by T. Number of books I have seen this is represented by T. And इसका मतलब क्या होता है भाई irrational number कौन से होंगे जो rational नहीं है? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई रैशनल और इरेशनल मिल करके बनाते हैं रियल नंबर, एंड जो रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे. दैट्स वाई इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इज एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन रैशनल नंबर. जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे. रैशनल प्लस इरेशनल जो बनेंगे वो रियल नंबर्स बनेंगे. इनकी डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत पहले से हम लोगों को पता है. इनका डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेट्स में इनके लेटर्स फिक्स होंगे. सम टाइम नंबर ऑफ टाइम्स वी विल राइट एक्स बिलोंग्स इन आर, एक्स बिलोंग्स इन आई. तो ये दिस इज वेल नोन, ये पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये. आफ्टर दैट एक सेट और एंटर करेगा क्लास 11th में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं दैट आर द रियल प्लस इमेजिनरी नंबर. अभी तक क्लास 11 से पहले हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करते थे. यहाँ पर वो भी नंबर आ जाएंगे जो कि इमेजिनरी होंगे. इमेजिनरी इन द सेंस अंडर रूट ऑफ -1. अंडर रूट -1 का केस अगर आएगा तो इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल्स में बात करी जाएगी, एंड इसको आई से रिप्रेजेंट कर. अब जिस नंबर में आई से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा दैट आर कॉल्ड इमेजिनरी, एंड इमेजिनरी प्लस रियल बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही समझेंगे. सिंपली इसमें अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन होल नंबर कंटेन्ड इन इंटीजर्स कंटेन्ड इन रैशनल नंबर, एंड जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है. रैशनल प्लस इरेशनल रियल है, एंड रियल एंड प्लस इमेजिनरी बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये पूरा ये जितने भी सेट्स होते हैं इनको हम मैथमेटिकल सेट्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यस नाउ सी दैट सम टाइप्स ऑफ सेट्स, कि सेट्स कितने टाइप का होता है. तो नंबर ऑफ टाइप्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल देम इज एम्प्टी सेट. अब एम्प्टी सेट क्या होता है? व्हाट इज द एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट इन द सेंस ऑल द सेट्स which have no element. A set has no element in it
is called empty set, and generally they are represented by phi. They are represented by phi or this symbol. So this symbol, if nothing is given inside, that is the empty set. Empty set in the sense a set of that elements which have no element. That is set of elements, set of the empty set is a set which has no element. ठीक है, it is represented by phi or this symbol. Just examples if you are to see, just like that is set A is given defined like this, x such that x square plus 1 is equal to 0 and x belongs in real number. So if you will see, there is no element in this which has element, just like x square plus 1, if you will solve, is equal to 0, x square will be equal to minus 1, and so x will be equal to under root of minus 1. So this is not a real number. तो ये तो रियल नंबर होगा नहीं. दैट्स वाई देयर इज नो एलिमेंट. इट मीन्स a इक्वल टू 5. एंड वन मोर थिंग, इफ आई राइट एट a इक्वल टू, सपोज आई एम राइटिंग दिस 5 इनसाइड इट, तो दिस इज नॉट अ रियल, दिस इज नॉट an empty set. This is not an empty set. Reason, 5 is the element of this. Generally if I am writing this also, that is this symbol inside this you are given, so this is also not an empty set, not an empty set. An empty set, empty set, it means clear. Either you will write just hollow bracket or this 5. These are the two particular symbols. And empty set is that is if no element in the set, that is called empty set, right? Yes, now this empty set is also called null set or void set. This already you discussed. Empty set, that is no element. After the second is coming singleton set. Singleton set in the sense this is defined by the name only. नाम से ही डिफाइंड है. सिंगल मीन्स क्या होता है? 1. सिंगलटन सेट क्या होता है? दैट इज इसमें एक एलिमेंट होगा. इट मीन्स अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा, जस्ट लाइक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वेयर x बिलोंग्स इन रियल नंबर, दिस इज द सिंगलटन सेट. या इसको सिंपली ले लें b इक्वल टू 0, दिस इज सिंगलटन सेट. अगर इसको हम c इक्वल टू ले लें, इवन दैट यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं हुआ. दिस इज द सिंगलटन सेट. केवल एक ही एलिमेंट है, दैट इज सिंगलटन सेट. इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि दिस ऑलरेडी यू डन इट एट 6, 7 and 8 लेवल फॉर एटलीस्ट फॉर ISC स्टूडेंट. दिस इज नॉट न्यू थिंग, बट बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर. इट मीन्स वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स. तो रैंडमली वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट. And finite set, finite in the sense क्या होंगे? That is set of all that element which are countable, which we can count, that is called finite. Just like if I am writing a set A is equal to B, this is A, B, C and D. तो इसमें number of elements कितने हैं? 4. That means this is finite. And if I am writing this n equal to be x, such that x is equal to 2n, and थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाए, and n is less or equal to 5, तो ये भी फाइनाइट है. यानी फाइनाइट सेट्स वो होंगे जिसका हम लास्ट एलिमेंट पता कर सकें. कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये अगर हम पता कर लें तो हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा. एंड नाउ इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट इन द सेंस जिनको हम काउंट ना कर सके. इट मींस इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन व्हिच आर नॉट काउंटेबल, दैट आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स. इनफाइनाइट सेट्स इन द सेंस सपोज n, that is set of natural number start from 1 2 3 dot 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 n dot 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 up to infinite. हमने बताया that is infinite लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं infinite लिखें. The 3 dots you are writing after this, ये this is showing that is up to infinite. Infinite in the sense number of elements जो होंगे वो काउंट नहीं करे जा सकते. यानी कितने एलिमेंट सेट के अंदर हैं ये काउंट नहीं किया जा सकता है, तो वो इनफाइनाइट सेट कहा जाता है.
डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स कौन से होंगे भाई? जिन दोनों के एलिमेंट एक जैसे बिल्कुल ना हो। दैट इज अगर एक सेट ए आया हमारा, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 5, 1 2 को भी हटा देते, दिस इज 1 3 5 एंड 7। दूसरा सेट है बी हमारा भाई 2 4 6 एंड 8। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब कोई कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। एंड इट मीन्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। एंड इसके बारे में भी आगे भी बात करेंगे कि अगर कोई दो सेट दिए हुए, सपोज वेन डायग्राम की बात करेंगे, तो इन दैट टाइम यू विल सी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो ये इस टाइप से इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो ये अलग अलग भाई सेट ए ये है, सेट बी ये है। यूनिवर्सल सेट जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, दैट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। एंड आफ्टर दैट इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इसको रब कर देते हैं। इक्विवेलेंट्स के सेट्स क्या होंगे? जब किसी के एलिमेंट्स एक जैसे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे हो, बट एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं सेम भी हो, तो इक्विवेलेंट सेट कह रहे हैं दैट इज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर आल्सो। आई थिंक इसके पहला कार्डिनल नंबर को लेना चाहिए, तब आना चाहिए इस साइड में, तब ज़्यादा सही है। नाउ दिस इज 6, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। Cardinal number is showing the number of elements in the set. That is, if set A is given here and this is having elements 1 3 5 7, तो इसके अंदर number of elements कितने होंगे? Number of elements in the set will be equal to 4 and this is represented by n of a, यानी ए में कितने एलिमेंट हैं उनको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट ऑलवेज एन ए से करेंगे। एंड अब बात आएगी इक्विवेलेंट सेट्स की। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स इन द सेंस, अगर कार्डिनल नंबर किसी दो सेट की एक जैसी हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक जैसे हैं, तो उनको इक्विवेलेंट सेट्स कहा जाएगा। जैसे कि दैट इज ए दिया हमें 1 3 5 1 3 5 7 एंड बी सेट कोई दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हमारे ए बी सी एंड डी हैं। तो इसमें देखिए भाई 4 ही एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है। इसका मतलब दोनों के एलिमेंट एक नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। इट मीन्स क्या बना भाई इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाई दैट ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। इक्विवेलेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी सिंबल, ये सिंबल होता है, यही शायद अप्रोप्रिएट सिंबल होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंस, क्योंकि वो तो सिमिलर का था, सिमिलर में और इक्विवेलेंट में डिफरेंस होगा। वो ज्योमेट्रिकल टर्म है, ये इसका ज्योमेट्रिकल टर्म नहीं है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स जो होंगे उनका ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ सी दिस सबसेट। सबसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली इन दिस केस। एंड सबसेट क्या होता है? Subset in the sense, if you are given a set A and all elements of A belongs in B, just like your school at class 11th, all the students of class 11th are the part of a school. So class 11th is the subset of a school, and is school is the subset of class 11th? I think not. That is, all students of the school are not member of the class 11th, but all elements of all students of the class 11th are the member of the school. It means class 11 is the subset of school, but school is not a subset of class 11.
So this type of sets are called proper subset. Generally subsets are two types. One is proper subset and another is improper subset. And proper subset generally represented by this symbol. A is subset of B without is equal. And improper subset generally represented by A and this symbol. This symbol in the sense subset proper or equal, and this. So these two symbols also defined. And proper and improper in the sense, in this case it may be A is the subset of B and B is the subset of A, that is all elements of A belongs in B and all elements of B also can belong in set A, यानी A के सारे एलिमेंट B में हो सकते हैं, B के सारे एलिमेंट A में हो सकते हैं, तो ऐसे सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। एंड प्रॉपर सबसेट अगर कोई होगा तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट तो दूसरे में होंगे बट दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में नहीं होंगे, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल स्कूल का दिया। अगर कोई ये बी स्कूल मान लिया है, ए क्लास 11th है, तो क्लास 11th के सारे एलिमेंट बी में जाएंगे, इट मीन्स क्लास 11 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ स्कूल। एंड इम्प्रॉपर सबसेट मान लें, कोई ऐसा एग्जांपल ले देते हैं, सपोज ए इक्वल टू आर गिवन, दिस इज 1 2 3 4 एंड सेट बी इज गिवन हियर, दिस इज 4 3 2 1। अच्छा, एक बात और भी क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी सेट में आर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्डर चाहे 1 2 3 4 लिखें, चाहे 4 3 2 कर दें या कुछ और कर दें, आर्डर से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ सी इफ all elements of A, that is all elements of A and all elements of B, so you will see all the elements of A belongs in B and all the elements of A B belongs in A, यानी A के सारे एलिमेंट B में, B के सारे एलिमेंट A में है, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट होगा। एंड अगर ऐसे कोई सबसेट हैं तो इसका मतलब ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, दैट इज A इक्वल टू B। तो किसी भी सेट्स में अगर कोई दो सेट्स को हमें इक्वल दिखाना होगा तो सेट के अकॉर्डिंग ऑलवेज वी विल शो देम सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी दो सेट अगर सबसेट ऑफ ईच अदर हो जाएंगे तो वो ऑलवेज इक्वल सेट्स कहे जाएंगे। तो इसीलिए हमने इक्वल सेट्स की डेफिनेशन पहले नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दैट इज टू सेट्स विच हैव सेम एलिमेंट, that is number of element as well as their element and not only cardinal number। cardinal number अगर सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, एंड अगर cardinal number भी सेम हो एंड एलिमेंट्स भी एक जैसे हो तो वो सेट इक्वल सेट्स कहे जाएंगे। एंड अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि दैट इज इफ सेट A इज द सबसेट ऑफ B एंड सेट B इज द सबसेट ऑफ A, दिस इम्प्लाई दैट A इक्वल टू B, यानी दो सेट ऐसे सेट इक्वल कहे जाएंगे जिसके एलिमेंट्स एक जैसे हो, या हम ऐसे कह सकते हैं अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये तरीका लगाएंगे कि अगर कोई दो सेट इक्वल दिखाने तो भाई पहले सेट को दूसरे का सबसेट दिखा दो, दूसरे को पहले का दिखा दो। अगर कोई दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, इट मीन्स वो ऑलवेज इक्वल हो। ये तरीका इक्वल सेट्स के लिए लगाया जाएगा। एंड अभी इसका पार्ट बचा हुआ है सबसेट्स का। सबसेट्स में बहुत सी चीज़ें, थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान रखना है कि सबसेट भाई दो टाइप के होते हैं, एक बात क्लियर हो गई। एंड इसमें कुछ छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी होंगी क्योंकि बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे तो ISC बोर्ड के लिए हमें लगता है क्लास 6 से आप लोगों को ये स्टार्ट कर दिया जाता है, कोई नया टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं। दीज ऑल द थिंग्स यू जस्ट नो, केवल रिमाइंड कराना है क्योंकि यहाँ पे टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया सिलेबस जिस टाइप से आया है उसके अकॉर्डिंग दिस इज हैविंग 24 मार्क्स, दिस सेट्स एंड फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि सिलेबस नया मिला हुआ है दैट वी कैन सी, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेट्स एंड फंक्शन आपको 20 मार्क्स देगा। एंड सेट्स एंड फंक्शन में सेट आएगा, फंक्शन का कुछ पार्ट होगा, फंक्शन आप लोगों के लिए नया होगा, एंड इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट होगा। सब मिला करके आपको 20 नंबर दे रहे हैं, तो 20 नंबर तो कम नहीं होते। ये सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों को हमने दे चुका हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं नया सिलेबस क्या है। एंड ये हो गया। इसके बाद छोटी छोटी सी बातें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। पहला, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, दैट इज एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एनी सेट
इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी सेट अपना भी सबसेट होता है। दैट इज अगर कोई ए है तो ए भी अपना भी सबसेट है, सेल्फ का सबसेट हो सकता है। दूसरी बात कि अगर नंबर ऑफ सेट किसी में ये हैं कि दैट इज इफ अ सेट ए हैज 1 2 3 3 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट पॉसिबल कितने होंगे? तो पॉसिबल सबसेट्स अगर निकालने हैं तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लिया हमारे पास 3 है, तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या हो जाएंगे? पॉसिबल सबसेट्स विल बी ऑलवेज 2 की पावर 3, दैट इज 8 होगा। ठीक है, ये कैसे आएगा इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट which has whose cardinal number is n will be 2 की पावर n। यानी अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो होंगे 2 की पावर n होंगे। 2 की पावर n विल बी द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। इसकी बात करेंगे कैसे आया इसको, जब हम एक टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ पे बात करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस लेवल पे अभी नहीं देखा गया है, तो वहाँ से ये चीज़ बनती है एक सीरीज, तो इसकी बात वहाँ पे करेंगे। यहाँ तो यही ध्यान रखना होगा, हमें लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नहीं जाएंगे अभी, कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं वहाँ, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड इसके बाद फिर अगर 5 लिया जाए, इफ 5 अगर होगा तो 5 सबका सबसेट होता है। दिस ऑल्सो सी कि 5 छोटी छोटी सी बातें जो है याद रखनी है, एंड बाकी सेट्स में कुछ नहीं होता। एंड ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसमें आराम से आप लोग समझ भी आ सकता है और बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास 11 की मैथ भी तो पुराने सिस्टम पे बेस होगी, फ्यू पॉइंट्स विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट जो होगा दैट इज 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। सबसेट्स की 5 सबकी सबसेट हो। ठीक है, नाउ सी आई एम राइटिंग वन एग्जांपल दैट इज a इक्वल टू आर गिवन एंड दिस इज ABC। क्वेश्चन इज गिवन दैट इज कि फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। तो भाई पहले नंबर में जब किसी की ऑल पॉसिबल सबसेट निकालें तो पहले ये निकाल लो कि दैट इज पॉसिबल सबसेट होते कितने, तब कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं होगा। तो यू नो दैट सिंस नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होता है 2 की पावर n। तो हियर n इज गिवन 3, तो इसकी कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगी भाई, ये 3 है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल 2 की पावर 3, दैट इज 8। यानी अब हमें जो सेट बनाने हैं वो 8 होने चाहिए। एंड वो सेट कैसे बनाएंगे? पहला नंबर तो 5 हो गया भाई, 5 सबका सेट होता है, सबका सबसेट है, तो इसको तो इंट्रोड्यूस ही कराना है। आफ्टर दैट एक एलिमेंट है, एंड दूसरा B दिया हुआ भाई, देन C हो सकता है, देन 2 एलिमेंट हो सकते हैं, दैट इज AB ले सकते हैं, देन BC ले सकते हैं, देन CA हो जाएगा। अच्छा भाई इसको रिपीट नहीं करना है, ध्यान रहे, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। यानी अगर CA भी लिख दो AC भी लिख दो तो गलत है, CA और AC एक ही बात है, BC एंड C भी एक ही बात है, ऑर्डर नहीं बदलेंगे। एंड देन तीनों एलिमेंट भी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेल्फ का भी सबसेट होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब अगर इन सारे सबसेट्स को किसी एक सेट के अंदर डाल दो तो वो एक प्रॉपर, ये क्या नाम, पावर ऑफ सेट बोला है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट, पावर सेट, इसको पावर सेट कहा जाएगा।
एंड अगर इसको हम किसी एक और बड़े से सेट के अंदर रख दें, बड़े से डब्बे में डाल दें, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, इसको पावर सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता, जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑलरेडी डब्बे में होंगे। ये एक चीज़ समझ लीजिए, अगर सेट है तो वो डब्बे के अंदर होना बहुत ज़रूरी। अगर सेट है 5 को छोड़ करके, क्योंकि 5 तो एक स्वतंत्र है भाई, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो जिसके पास कुछ है ही नहीं वो चाहे ना घूमे, क्या फर्क पड़ता है। तो जितने भी सेट होंगे वो ऑलवेज डब्बे के अंदर होंगे। अगर डब्बे के अंदर नहीं है तो फिर वो सेट नहीं होगा। जैसे कि अगर इसमें एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं कि भाई एनी सेट इज गिवन, दिस इज ए, सपोज एक 1 2 3 दिया हुआ, तो 1 2 3 अगर दिए हुए हैं तो भाई 1 2 3 अगर ये डब्बे के अंदर नहीं है तो वो दिस इज नॉट सेट, ये तो सेट है ही नहीं, नॉट अ सेट, ठीक है, ये कोई सेट नहीं है। एंड अगर इसको हम ये लिखें भाई, ये दिया 1 और ये 1, इन दोनों में बहुत अंतर। अगर इस सेट को लेते हैं 1 को और ये 1 लेते हैं, तो इसमें देखिए भाई क्या होगा भाई, 1 जो है ये बिलोंग्स करेगा, 1 बिलोंग्स इन सेट ए, सेट ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स इन सेट ए। बट ये जो इस टाइप का आप डब्बे के अंदर होगा तो ये सबसेट ऑफ ए होगा, कि ध्यान रहे, दिस इज द डिफरेंस, कि जब इस डब्बे के अंदर होगा तो ये सबसेट होगा, एंड अगर 1 ऐसे ही लिखा तो ये बिलोंग करेंगे। दस लाइक क्लास 11th इज द सबसेट ऑफ स्कूल, बट किसी एक स्टूडेंट को ले लीजिए जनरली, तो वो स्कूल का सबसेट नहीं है, वो दैट स्टूडेंट इज बिलोंग्स अप टू द स्कूल, स्टूडेंट बिलोंग टू द स्कूल होगा। एंड अगर कोई क्लास ली जाएगी चाहे 6 7 8 9 10, वो सभी आपके सबसेट होंगे। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप दिस यू अंडरस्टूड। वंस अगेन वी रिमाइंडिंग इट, दैट इज सबसेट, that is there are 2 or more sets are given. If all the elements of one set belongs in other, then first set is called subset of other. सबसेट 2 टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट अगर होगा तो पहला दूसरे का सबसेट होगा, बट दूसरा पहले का सबसेट नहीं होगा। एंड अगर इम्प्रॉपर सबसेट है तो वो दोनों इक्वल होंगे, जनरली इक्वल ही होते हैं, इक्वल ही होंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो वो दोनों सेट बराबर ही होते हैं, यानी वो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। एंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर n होता है। एंड अगर सारे सबसेट पॉसिबल सबसेट, किसी सेट के सारे पॉसिबल सबसेट को भी एक सेट में लिख दिया जाए तो उसको हम पावर सेट कहते हैं। अगर इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कराएं, जिसकी अभी आगे बात करेंगे वेन डायग्राम की, तो इसको वेन डायग्राम से देखना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, तो इसका हम यूज़ नहीं करें क्योंकि अभी इसके बारे में बताया नहीं, इसलिए तो इसके फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो पावर सेट की बात हो गई, कार्डिनल नंबर की बात हो गई, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, एंड सबसेट्स हो गए। सबसेट 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, एंड दूसरा प्रॉपर सबसेट की बात हुई भाई, स्कूल जो है एक, और एक क्लास 11th है, तो क्लास 11th आपकी प्रॉपर सबसेट है स्कूल की। इसके बाद अगर इसको वेन डायग्राम से देखते हैं तो एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया भाई सेट ए है, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो सेट ए ये है और सेट बी मान लिया ये है, और सेट ए जो होगा इसके अंदर आएगा। अगर ये सिचुएशन दिखाता है तो ए इज द प्रॉपर सबसेट, दिस इज शोइंग दैट इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कराते हैं और ऐसे भी बड़ा सा यू बना देते हैं। इसकी बात अभी करेंगे वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम एक ऐसा सेट होता है जिसको सबको कंटेन करता है। दैट्स लाइक स्कूल इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं सेट्स। अगर इनके कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनाने तो इस पिक्टोरियल मैथ को हम वेन डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि वेन ने स्टार्ट किया था इसलिए उनके नाम से ये चलता है। वेन डायग्राम का मतलब रेक्टेंगल होगा वो यूनिवर्सल सेट दिखाता, एंड इसके अंदर जितने भी सेट डाले जाएंगे वो सब इसके सर्कल से दिखाए जाएंगे, ठीक है। 2 ये मैथमेटिक्स में यूज करें, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। एंड प्रॉपर सबसेट हो गया, ये हो गया। इसके बाद फिर आता है बात यूनिवर्सल सेट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज कंटेनिंग ऑल द टाइप्स ऑफ सेट्स।
That is universal set will be the next 7, this is 8 and 8 हो गया, this is 9. Universal set. Universal set in the sense this containing all types of sets. Just like school is the universal set of all classes. Classes 0 क्या नाम नर्सरी से लगा करके क्लास 12 तक जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी यूनिवर्सल यानी स्कूल के अंदर आते हैं. तो स्कूल इज द यूनिवर्सल सेट of all type of classes and generally it is represented by either this symbol or ये different books में different types लिखा होता and just like school तो बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है. एक मैथमेटिकल एग्जांपल देख लीजिए. जस्ट लाइक ए इज गिवन हियर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे सेट दिया हुआ यूनिवर्सल सेट इज गिवन सपोज 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक. तो अब इसमें ए ले लिया, दिस इज बी इज गिवन 2 4 6. तो ये जितने भी सेट होंगे वो सब इसी के अंदर आ रहे हैं. तो इट मीन्स यूनिवर्सल सेट जो होगा इन दोनों का ये यूनिवर्सल सेट है. रीजन कि ए जो है ये भी इसका सबसेट है यूनिवर्सल का एंड बी के जो एलिमेंट है वो भी यू में ही बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में ही बिलोंग कर रहे हैं. तो ए और बी के लिए ये यूनिवर्सल सेट काम कर रहा है बिकॉज ये दोनों सेट इसके अंदर आ जा रहे हैं. अगर इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस कि भाई अगर ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए जो में दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, तो हमने सेट ए ये बना लिया, सेट बी ये बना लिया. तो इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहे हैं तो इसकी ऑपरेशंस की भी बात करेंगे. यहाँ पे देखिए 2 4 6 इसमें दिख रहा है, दिस इज 2 4 6. तो 2 4 6 कॉमन वाले पार्सन में है तो इस टाइप से लिख दीजिए, दिस इज 2 4 एंड 6 एंड देन 1 3 5 1 3 5. ठीक है, 1 3 5 2 4 6 यू विल रिप्रेजेंट लाइक दिस. ठीक है, अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. Yes, now see next point is operations on sets. Operations on sets in the same, just like we are using some symbols, addition, subtraction, multiplication, division. So these are the operations on numbers and operations on sets are that 3. तो 3 ऑपरेशन की हेल्प से अदर प्रॉब्लम्स हम सेट्स में सॉल्व करते हैं. We will discuss about them. First of all is called union of set. Union of set. एंड सेकेंड इज, तीनों को लिख लेते हैं पहले. दूसरा होता है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. थर्ड इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स. इन 3 ऑपरेशंस को हम ऑलवेज यूज करते हैं इन सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स आर दैट विच इज इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी. यानी 2 or more एलिमेंट्स आर गिवन, वी आर क्लब देम, देन वी विल गेट अ सेट दैट इज कॉल्ड यूनियन. बट यू नो दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. इट मीन दोनों में अगर जो कॉमन होंगे उनको हम एक ही बार लिखेंगे, केवल इतना ही अंतर होता है. मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड लाइक दिस कि A यूनियन B is equal to X such that X belongs in A and X belongs in B. Sorry, this is R belongs to this. या तो वो X का A का एलिमेंट होना चाहिए या B का एलिमेंट होना. R in both, R in both, तब वो यूनियन कहा जाएगा. इसको अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, वेन डायग्राम आई हैव डिस्कस आई थिंक, वेन डायग्राम सिंपली किसी यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं, सेट को सर्कल से दिखाते हैं. वेन डायग्राम अगर इसको रिप्रेजेंट कराएं तो वी विल डू लाइक दिस कि अगर हमें ये दिया हुआ कि दिस सेट ए इज गिवन, दिस सेट इज गिवन बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस होल विल बी रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ 2 सेट्स. ये पूरा पोर्शन जो होगा यूनियन ऑफ 2 सेट कहा जाएगा. ये सेट ए, ये सेट बी है एंड ए यूनियन बी जो होगा दैट विल बी दिस. ये ए यूनियन बी दिखाएगा. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट.
ठीक है, डायग्राम से इस टाइप समझ सकते हैं। एंड इसके अदर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। भाई अगर कोई सेट दिया हुआ कि सपोज इफ सेट ए इज गिवन कि सपोज 1 2 3 4, सेट बी इज गिवन 2 4 6 8 एंड 10, देन ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, बट रिपीटेशन नहीं होगा। दैट्स वाई इसमें देखा 2 और 4, 2 and 4 आर सेम, तो दैट वी विल राइट ओनली वन टाइम। 1 2 3 4 तक तो सब ठीक ही है, एंड 6 8 एंड 10 ये इसके डिफरेंट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करा देंगे ए यूनियन बी से। तो 1 2 3 4 6 8 10 एक ऐसा सेट आया जिसमें जो एलिमेंट्स इसके हैं वो कुछ एलिमेंट ए से भी हैं, यानी इसका जो एलिमेंट एक्स है वो या तो ए में बिलोंग कर रहा या एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा, दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द ऑपरेशन ऑन सेट्स। एंड इसको सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो इसको हम एडिशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ सेट्स, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे के चैप्टर्स में याद करेंगे इसको, बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स को क्लब करने की बात आएगी, ऐड करने की बात आएगी, तो हम यूनियन लगाएंगे। तो यानी जैसे हम एडिशन का यूज़ करते हैं नंबर्स पे, वैसे ही हम यूज़ करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स का। जब सेट्स को ऐड करना होगा तो हम यूनियन ऑफ सेट लगा देंगे, एंड जब कॉमन दिखाना होगा तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लगाएंगे। तो उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन इन द सेंस दैट इज कॉमन ऑफ टू एलिमेंट्स, टू सेट्स अगर दिए, इनके दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उनको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, उल्टा बना देंगे भी यूनियन का। सेकेंड पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट, intersection of sets, this is generally represented by this sign। अब देखिए ये साइन बड़े उल्टे पुल्टे हैं, एक चीज ध्यान रखिए, अगर ऐसे करेंगे तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। अगर इसको हमने ऊपर बना दिया तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट का तो एक सिंबल और भी होता है, जनरली इसी को यूज करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज ये यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन दोनों कंफ्यूज करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। एंड इसको बनाएंगे, छोटा सा बनता है एक्चुअली, ये बड़ा बनता है, ये छोटा बनता है, तो ये होता है आपका यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। एंड अगर यही हमने इधर साइड को बना दिया तो ये सुपर सेट की बात करता है। सुपर सेट क्या होता है? जस्ट लाइक इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन दिस आल्सो कैन बी, दैट इज बी इज सुपर सेट ऑफ ए। भाई बी ए का सुपर सेट है, यानी इस साइन को अगर उल्टा कर दिया तो ये सुपर सेट का काम करना पड़ेगा, यानी सिंबल एक ही रहते, इसको उल्टा पुल्टा घुमाते जाएंगे तो इसके डिफरेंस मीनिंग भी आते जाएंगे। तो दिस आल्सो नोटेड डाउन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको मैं गोले में बना देता हूँ, गोले वाली चीज़ें समझ लीजिए इंपॉर्टेंट होंगी। एंड इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन इस टाइप से आएगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ए एंड एक्स बिलोंग्स इन बी। अब देखिए ये डेफिनेशन में अंतर है, वहाँ पे आर होता था, या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो। यहाँ पे ये कंपलसरी है कि ये दोनों ही एलिमेंट दोनों में होने चाहिए, यानी एक एलिमेंट जो लिया है कॉमन वाला वो दोनों ही एलिमेंट में होना चाहिए, दोनों ही सेट में होना चाहिए। दोनों सेट में नहीं है तो भाई इंटरसेक्शन में नहीं होगा। जस्ट लाइक वेन डायग्राम से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो वेन डायग्राम में इस टाइप से देखा जाएगा, भाई एक सेट ये दिया हुआ और एक सेट ये दिया हुआ, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, जिसमें कॉमन पोर्शन कितना आएगा? दिस वन, दिस इज द कॉमन पोर्शन, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी।
अच्छा, एक बात और भी करें, डिसजॉइंट सेट की बात करी थी पिछली बार, तो डिसजॉइंट सेट को अगर हम दिखाएंगे तो वो इस टाइप से होंगे, यानी अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट कहे जाएंगे। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है, फाई इन द सेंस एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट। तो पीछे बात करी थी डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जो कि कोई भी कॉमन एलिमेंट ना रखें, यानी अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई आता है, भाई कुछ नहीं कॉमन है तो फाई होगा, फाई तो कहीं भी हो सकता है, फाई मीन्स कुछ नहीं, एंड कुछ नहीं तो हर जगह हो सकता है। सो ए इंटरसेक्शन इज फाई, देन दीज टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, एंड इफ दे आर हैविंग सम कॉमन, देन कॉमन पोर्शन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। दिस इज द basic thing of it, and these symbols also you keep in mind, because same symbol है, इसको बस खाली आड़े तिरछे घुमाते जाओ, इसके मीनिंग्स डिफरेंट आते जाते हो। दिस इज आल्सो सम टाइम कंफ्यूजिंग। एंड एक सिंबल इसमें और भी होता है, अगर इस टाइप बना दें और ये सिंबल लगाते हैं तो ये बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू, क्योंकि ये सिंबल भी काफ़ी मायने रखते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। एंड अगर इसी में हम ये सिंबल लगा दिया, इसके ऊपर लाइन बना दिए, तो ये डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स। किसी के ऊपर ये लाइन, अगर ये ऑब्लिक लाइन बना देंगे तो ऑलवेज उसका अपोजिट सेंस देगा, नेगेशन देगा, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया, ये दूसरा ऑपरेशन है। तीसरा ऑपरेशन इसका होता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक दिस इज इनफ, क्योंकि थोड़ा सा सिंबलिकली देना, बहुत ज़्यादा देने की हमें लगता है ज़रूरत नहीं है सेट्स में, क्योंकि सेट कोई नया टॉपिक नहीं है क्लास 11 ISC बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत पुराने तरीके से पढ़ाया जाता है 6-7, बट ये होता है कि कुछ स्कूलों में होता है, कुछ स्कूलों में नहीं होता, तो इसमें बेसिक बातें तो आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। एंड नाउ दिस 3 टॉपिक्स, सेट्स एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री, 3 लोग मिल करके आपको 20 नंबर दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है एंड ईजी भी है। क्लास 11th में अगर आए हैं इट मीन्स कुछ तो आपका इंटरेस्ट होगा मैथ में, यू आर हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर, दैट्स वाई यू आर ऑप्टेड मैथमेटिक्स। फोर्सफुली तो बिल्कुल ना लें, सबसे बेहतर तरीका होता। एंड नाउ डिफरेंस, थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये तीसरा ऑपरेशन है। अब डिफरेंस, ये दूसरे डिफरेंस जैसे हम नंबर्स में करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड इट इज रिप्रेजेंट बाई ए माइनस बी। तो इस ए माइनस बी का मतलब क्या है कि भाई ए से बी के सारे एलिमेंट हटा दो, तो इट विल बी रिप्रेजेंट बाई लाइक दिस एक्स, एंड एक्स बिलोंग्स इन ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन बी। यानी भाई वो बंदा एक्स का एलिमेंट हो, केवल एक्स का हो, बी में नहीं होना चाहिए। तो इसको सिंबल के लिए हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी जो होंगे वो केवल ए के एलिमेंट होंगे, इसमें से ए और बी के जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट होंगे उनको हटा दोगे। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्डिनल नंबर के फॉर्म में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस दियर इंटरसेक्शन, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेन डायग्राम से अगर इसको देखेंगे तो इट विल बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, कि अगर कोई सेट यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ, हम बार बार इसी को बना देते हैं, कई बुक्स में इसको इस टाइप से लिखा जाता है, दोनों टाइप से ठीक है, बट यही टाइप हमें लगता है ज़्यादा सही होता है, क्योंकि वो वाला फॉर्म जो है यूनियन से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कराता है। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड अगर ए माइनस बी निकालना है तो भाई ए माइनस बी तो ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि ए से बी के सारे एलिमेंट चले जाएंगे, कॉमन वाले चले जाएंगे। अगर ये चले गए तो ये बचेगा ए माइनस बी, और इधर वाला पोर्शन जो देखेंगे तो ये बताएगा आपको, इसको हम थोड़ा ब्लैक से कर देते हैं जिससे थोड़ा दिखाई पड़े, ऐसा ऐसा। तो ये वाला पोर्शन जो बताएगा वो बी माइनस ए दिखाएगा। तो एक चीज़ और भी देख लीजिए कि दैट इज ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं है, यानी आर्डर बदल नहीं सकते, जबकि इंटरसेक्शन में कर सकते थे, यूनियन में भी आर्डर बदल सकते थे। इसमें बेच कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड
आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, क्योंकि किसी भी अलजेब्रा में अगर ये 4-5 प्रॉपर्टी हैं और ये फॉलो नहीं करता तो फिर वो वैलिड अलजेब्रा नहीं होता। तो उनकी भी बात करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ नोट कर लेते हैं, इनको एक ही साथ लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका एक एग्जाम्पल भी कहो तो ले लें, भी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर मान लें कोई सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज बी इज गिवन सपोज 2 4 एंड 6, तो इसका a माइनस बी जो आएगा इसमें से 2 एंड 4 देखिए कॉमन दिख रहे हैं, तो 1 3 बचेगा केवल, दिस विल बी a माइनस, राइट। आफ्टर दैट नाउ डिफरेंसेस, कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Yes, now see some properties based on union and intersection। तो इंटरसेक्शन यूनियन में अगर किसी भी सेट का उसी से यूनियन निकालोगे तो क्या है, ये यानी कोई भी अगर प्रॉपर्टी है सेल पे लगा दे तो उसको हम आइडेंटिपोटेंट ला, आइडेंटिपोटेंट ला ये नाम भी आगे चल कर के काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कई चीजों में यूज होगा। आइडेंटिपोटेंट यानी सेल पे लगा दे, तो अगर ए यूनियन ए निकालेंगे ये आएगा, इंटरसेक्शन ए निकालेंगे इंटरसेक्शन ए आएगा, यानी सेम रिजल्ट आएगा, तो उसको हम आइडेंटिपोटेंट कॉम्पिटिटिव लाएंगे। अगर ऑर्डर हम बदल दें रिजल्ट चेंज ना हो, यानी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, जस्ट लाइक 2 + 3 बराबर 3 + 2, आंसर सेम आ रहा। अगर ऑर्डर बदलने से उसको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अच्छा अगर इसमें डिफरेंस में अगर हम देखें, डिफरेंस में देखिए तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करें कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस, वैसे भी पता है कि डिफरेंस जो होता है बराबर नहीं आएगा, ऑर्डर बदलेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, तो डिफरेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी इन दो का रिजल्ट निकालें तीसरे के साथ, या पहले दो का रिजल्ट निकालें तीसरे के साथ, दोनों के रिजल्ट एक जैसे आएंगे, सेम थिंग इज हियर, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। इसके बाद लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक्चुअली क्या होती है, अगर हम किसी एडिशन में होते हैं तो एडिशन में अगर किसी 2 में अगर हम 0 ऐड कर दें, 2 + 0, 2 + 0 क्या देगा 2 देगा, 3 + 0 क्या देगा 3 देगा, यानी ऐसा एलिमेंट किसी के साथ ऐड किया जाए तो रिजल्ट वही दे, या किसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट वही दे। तो हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर्स में होती है वो 1 होती, एंड एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती, क्योंकि 0 किसी साथ ऐड कर दो तो आंसर वही आता, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर वही आता। तो वहां पे अगर नंबर्स में देखें तो 0 और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं, एंड यहाँ पे सेट्स के लिए अगर देखेंगे तो अगर 5 के साथ किसी का यूनियन निकालो तो वही आएगा, भाई 5 में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं, तो एक ही एलिमेंट आएंगे। अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकाला जाए तो यूनिवर्सल सेट तो भाई सबका बास है, तो सब इसी के अंदर कंटेन है, तो अगर एक का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालो तो वही निकलेगा, तो ये भी आइडेंटिटी कहा जाएगा इस केस में। एंड अगर इंटरसेक्शन केस में आते हैं तो 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालो तो 5 निकलेगा, और यूनिवर्सल सेट के साथ निकालोगे तो ए ही निकलेगा इंटरसेक्शन। तो ये इसके लिए आइडेंटिटी काम करें, और ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती, एक इंटरसेक्शन पे होती है एक यूनियन पे होती है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है तो इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टीज जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक क्लास प्रॉपर्टी और बची हुई है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या है उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन at least this basic knowledge you should have, then you can do the questions based on sets. And few things you will revise. This is not new topic for you, so I think you can do very easily, but this basic steps you require, and थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ, बस मुझे थोड़ा सा लगता है कि 7 6 7 8 में कुछ पढ़ा होगा, क्लास 11 में मैंने दिया है, इसका मतलब you are having some soft corner for this subject. Next point is complement of कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट इसको हम थोड़ा सा लास्ट में इसलिए रखें तो किसका इसी से मामला बनेगा। कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होते हैं, कीवर्ड सेट्स होंगे, इसको मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो दिस विल बी इक्वल टू दिस इज x such that x does not belongs in A। कोई ऐसा x होगा एक एलिमेंट जो ए में हो ही ना, तो इसको हम जनरली सी से इस टाइप से या ऐसे लिख देते हैं,
ये इसका रिप्रेजेंटेशन जिसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वेन डायग्राम से अगर इसको हम देखें तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। अगर सेट ए ये दिया हुआ ये यूनिवर्सल सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा बाहर होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट विल बी दिस, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट से ए निकाल दो तो जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट। तो इस पे कुछ प्रॉपर्टीज भी बन जाती कि अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो फाई आ जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये भी बात ध्यान रखिए, अगर यूनिवर्सल सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो क्या होगा, इसके बाहर रहेगा एंड बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट निकालो अंदर आएगा। अगर तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या होगा, स्कूल के बाहर भी स्टूडेंट होगा। ठीक है।